आज अभी लिखित बयान नहीं है, बाद में मैं डिक्टेट करके भेजूंगा, लेकिन थोड़े नोट्स लेना ठीक रहेगा। पहले देश के एक वरिष्ठ नेता मोहन धारिया की आज मृत्यु हुई है पूना में। उनको हम पार्टी के तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। खासकर कांग्रेस में 70 के दशक में उन्होंने युवा तुर्क के नाते जो भूमिका अदा की और आपातकाल के दरमियान चंद्रशेखर और उन्हें कृष्णकांत जी को सबको जेल में रखा इंदिरा जी ने, लेकिन वो उस लड़ाई से पीछे नहीं आए। और जब राजनीति से, सक्रिय राजनीति से वो बाहर खुद होके हुए और पर्यावरण के विषय में लगातार पिछले 25 साल काम किया, तो अपने मतों पर दृढ़ रहने वाले एक नेता को हमने खोया है। और इतिहास में उनका जरूर स्मरण रहेगा कि उन्होंने एक बड़ी भूमिका, जब पूरा संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही थी तब उन्होंने अदा की, और इसलिए हमारी श्रद्धांजलि है। We have lost a very credible leader in Mohan Dharia. We pay our rich tributes to the departed soul, because he was one young Turk in Congress who opposed the dictatorial tendencies of Congress. As a young Turk, along with Chandrasekhar ji, Krishnakant and others, they waged and gave a fight in the Congress for the principles. And they joined the efforts because Congress was really damaging the whole constitutional apparatus. And to that end he fought and even was imprisoned for 19 months in Nasik prison. After his political stint, last 25 years he devoted for environment and social causes. And therefore we pay rich tributes to the departed leader. And history will always remember him as a fighter and fighter for a cause. He was the freedom fighter also. आज रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कल वॉशिंगटन में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया है that Reserve Bank would soon come out with major reforms in the banking sector that would allow foreign banks to enter in India in big way and even take over domestic lenders. That is going to be big opening, because one could even contemplate taking over Indian banks, small Indian banks and so on. एक बड़ा नीतिगत फैसला देश के बैंकिंग सेक्टर पर बहुत दूर तक परिणाम करने वाला बड़ा फैसला, देश में बिना चर्चा रिजर्व बैंक के गवर्नर अगर बाहर उसका ऐलान करते हैं तो पहले हमारी आपत्ति वही है। देश में बगैर चर्चा के अगर ऐसे बड़े वित्तीय निर्णय घोषित होंगे तो देश के लिए वो ठीक नहीं है। विदेशी बैंकों का 2008 के वित्तीय संकट जो दुनिया में आया, उसमें क्या सहभाग रहा, क्या रोल रहा, ये दुनिया ने देखा है। और जब वित्तीय संस्थाओं को, यानी बैंकिंग सेक्टर ही फेल हो गया
विदेशों में? आर वी इंपोर्टिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस नाउ? क्या हम वो वित्तीय संकट को हम आयात करेंगे? यह बहुत बड़ा फैसला है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और आज तक जितने विदेशी बैंक आए और जो प्राइवेट बैंक आए, स्टैंडिंग कमेटी का अभी रिपोर्ट आया है उसके सामने, और बहुत सारे दस्तावेजों में साफ हो गया है कि विदेशी बैंक और निजी बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो देश का लक्ष्य है उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखते। वो केवल क्रीमी बिजनेस में कॉम्पीट करते हैं। दे कॉम्पीट ओनली इन क्रीमी बिजनेस। The record of last 20 years of foreign banks in India operating in India and private banks operating in India, as far as financial inclusion is concerned, which is the top priority in Indian banking, they are not performing their obligation. And therefore, such an important announcement of allowing private banks and foreign banks a big way, and even they will be allowed to take over the small banks, is a major policy decision which should have been discussed in the country first and then announced. But that shows the UPA way, and therefore we are raising the issue that the world has witnessed after 2008 that the whole financial crisis in the world was the banking crisis, and that the whole banking crisis has impacted the economies, world economies, including US and Eurozone. Are we therefore importing the financial crisis which world has experienced? And on the backdrop of their contribution in the financial inclusion for last 2 decades in the India, therefore, this is a major policy decision which requires a larger debate. एक याद दिलाना चाहता हूं मैं, 2002 में एनडीए की शासन थी, तब निजी उद्योगों को बैंक स्थापना करने का प्रश्न सामने आया था। तब 2002 में इंडिया सरकार ने घोषणा की कि नए प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं, लेकिन एक एक इंडस्ट्रियल घराने को एक एक बैंक देने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। और उसका कारण था देयर वाज मॉरल हैजार्ड एंड द फायरवॉल्स मे नॉट बी दैट इफेक्टिव। आप कल्पना करिए, डूबते जहाज कंपनी का अगर बैंक भी होता तो विमान कंपनी भी बंद और बैंक भी बंद। तो इसलिए उसमें रिस्क थे। ऐसा नहीं कि सभी औद्योगिक घरानों के बैंक कोई कोलैप्स होते, वो नहीं है। लेकिन इस विषय पर स्टैंडिंग कमेटी ने एक बहस करके स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी है। सरकार को उसको भी ध्यान रखना चाहिए। सभी पार्टियां उसमें है, एक राय से रिपोर्ट है। और इसलिए हम अभी इतना ही कहेंगे कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट विदाउट द प्रॉपर नेशनल डिबेट इन द कंट्री ऑन सच ए इंपॉर्टेंट इशू ऑफ allowing foreign banks to enter in a big way and to allow them to take over the Indian small banks is a very important and a major step which should not have been made unilaterally in Washington. Instead, that should have been debated here in India first. और इसलिए वी डोंट, रघुराम राजन की इस घोषणा को ये उचित नहीं हम ठहराते कि चर्चा के बिना उस तरह की घोषणा करना। ये एक दूसरा मुद्दा था। पिछले सप्ताह भी हमने कहा सीमा पर जो स्थिति है, कल भी पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का वायलेशन किया है। हमारा एक बीएसएफ का जवान जख्मी हुआ है। सीमा पर गोलाबारी, सीज फायर वायलेशन, इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअस है।
भारत को राजनीतिक कदम उठाने चाहिए, लेकिन देश से छुपाया गया कि केरन सेक्टर में इतना बड़ा इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट हो रहा है, जबकि न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नवाज शरीफ से बात कर रहे थे। तो इसलिए हम फिर मांग करते हैं कि जो सीमा पर तनाव है, सीमा पर जो स्थिति है, उसके बारे में आप स्वयं प्रधानमंत्री देश को आश्वस्त करें, और ये कब खत्म होगा, इसका क्या उपाय करेगा भारत, ये भी दो टूक बात सामने आनी चाहिए। एक छोटी टिप्पणी करूंगा, फिर आपके सवाल कुछ है तो लेंगे। आज यानी कल मध्य प्रदेश में रतनगढ़ में जो हादसा हुआ है, उसमें जो लोग मरे हैं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो जख्मी हुए हैं उनके हमारी प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ये एक बहुत बड़ा हादसा है और ऐसे हादसे लगातार हो रहे। 2 साल पहले केरल में शबरीमला में 106 लोग मरे थे। आज के गृह मंत्री सुशील कुमार जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे तो नासिक के कुंभ मेला में 40 लोग मरे थे। महाराष्ट्र से मैं आता हूं तो मांड्रा देवी हमारे सातारा के नजदीक है, वहां 350 लोग मरे थे। उत्तर प्रदेश में कुंडा में यात्रा में 63 लोग मरे थे। और भी बहुत सारे हादसे हुए हैं। नैना देवी में हादसा हुआ। लगातार ये जो हादसे हो रहे, एक राष्ट्रीय आपदा समझना चाहिए। आज अभी मैं जयपाल रेड्डी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी जो तूफान आया, चक्रवात आया, उसमें हमारे मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और सही अंदाज दिया। ठीक है, सही अंदाज दिया, उन वैज्ञानिकों को हम बधाई देते। लेकिन ये भी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध सभी समाज और मजहबों की यात्राएं निकलती है, अनेक बार यात्राओं के ठिकान ऊपर होते हैं। सबरीमाला के समय मैं खुद एक टीम राजनाथ जी ने बनाई थी तो मैं गया था। तो पहले वहां कम भीड़ होती, बाद में अब बढ़ गई है लोगों की श्रद्धा आस्था, तो लोग ज्यादा संख्या में जाते और वहां से लौटते समय या वहां जाते समय कोई ना कोई हादसा होता है जिसमें अनेक लोगों की भगदड़ में मृत्यु होती है। एक राष्ट्रीय आपदा समझ के उसके निवारण के लिए, जैसे समझो एक 500 ऐसी यात्राएं हैं देश भर में ठिकान, तो वहां केंद्र सरकार देख के वहां का एक ठीक तरह से प्लान, हर एक क्षेत्र का अलग अलग होगा लेकिन करना चाहिए और राज्यों को मदद भी देनी चाहिए और एक नेशनल प्लान होना चाहिए। इसकी चर्चा करने के बजाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेता के बाद नेता दिग्विजय जी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य, अजय माकन, सत्यव्रत चतुर्वेदी, सभी लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की इस प्रवृत्ति की हम भर्त्सना करते हैं। यह राष्ट्रीय आपदा का एक मुद्दा है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको पहल करनी चाहिए, लेकिन पहल केंद्र को करना चाहिए कि ऐसा हादसा कभी न हो। लेकिन उसमें आज चुनाव है तो राजनीति करके इस्तीफा मांगेंगे। उस समय हमने नासिक के कुंभ मेले में हो या मांड्रा देवी के समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो इनका इस्तीफा नहीं मांगा था। सब लोग पहले उसमें जुड़े और कारणों का पता लगाकर फिर उसमें उपाय क्या हो इसकी चर्चा हुई राज्य में। लेकिन ये कांग्रेस की राजनीति है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हैज हैपेंड इन रतनगढ़ इन मध्य प्रदेश, वेयर मोर देन 100 people have lost their lives. We pay our homage to all those who were killed in this very unfortunate tragedy.
And we pray that those who are injured should recover fast. And there are, every year we hear such kind of tragedies. In Nasik, Kumbh Mela, 40 people died in such stampede. In Naina Devi, we lost many people. In Mandra Devi, in Maharashtra, 350 people died in such a stampede. In Kunda, in Uttar Pradesh, 63 people died. In Shabarimala, just 2 years ago, in Kerala, 106 people died. All deaths of pilgrims at all such places are unfortunate national tragedy and must be recognized as that. And therefore, what is needed is that the center must survey at least important 500 places of pilgrimage of Hindus, Muslims, Sikh, Isai and others, Buddhas and other, wherever large congregations of religious nature happen, government must survey those spots, places and must make them a plan to make them more secure. Because large amount of people now are coming there to such pilgrims. And therefore, it's a need of the hour that the central government takes initiative, takes all states into confidence and prepares a national disaster plan, how to avoid such disasters and come out with a plan and helps the states to walk on the path. But instead of doing this, every Congress leader, right from Kamal Nath to Jyotiraditya Shinde to Ajay Makan and Satyavrat Chaturvedi and everybody, Digvijay Singh, they are doing politics. On the eve of election, they are doing politics. लाशों पर राजनीति कर रहे हैं. And therefore we are saying that this attitude of Congress is destructive attitude. We condemn such attitude. One should really discuss the tragedy and ensure that how such tragedies don't happen again. And MP government is doing its job, but as you know, there is election code of conduct, so no leaders are allowed to go to the place by the election commission conduct because it's a religious congregation and therefore you cannot participate. So these are guidelines, but the issue here is the approach, and the Congress approach is just political and they are doing it on the tragedy that is bad, and therefore we condemn that attitude. That's all from my side.